Okay, so it's day 42 and today we'll be solving this count the number of ideal arrays. So इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें एक इंटीजर दिया n एंड वी आर गिवन अ मैक्स वैल्यू एंड व्हाट इज़ एक्चुअली एन आइडियल अरे. सपोज तुम्हें लेट जस्ट से यू आर गिवन n इक्वल्स टू 2 एंड तुम्हें जो मैक्स वैल्यू है ना, जो मैक्स वैल्यू है दैट इज़ गिवन एज 3. ठीक है, थोड़ा और बड़ा वैल्यू लेते हैं. जैसे तुम्हें n इक्वल्स टू 3 दिया एंड मैक्स वैल्यू तुम्हें बोला है दैट इज़ 5. So you have to make an array of length 3 and the max value of all the elements in the array should be 5, and another condition is ARRI is divisible by ARRI minus 1 and ARRI should be from 1 to max value जो मैंने बोल दिया, and ARRI should be divisible by ARRI like the previous element. So you can make elements like arrays like 1 to 4 because as you can see every number is divisible by its previous number and the max value also doesn't exceed 5. Similarly, you can make 155, you can make 122, you can also make 136. You cannot make 136 because 6 actually exceeds 5. And so you can make 133 if you want. You can make a 133, you can make a 114. All these things are valid, all these are valid arrays. And you actually have to give the count of these numbers. कि ये कितने ऐसे numbers आ रहे and modulo that with 10 raised to 9 plus 7 as it will be a large number. ठीक है. So how to solve this now? So before, like, there are many steps to this problem, like this is not a simple problem, there are many steps to this problem. The first thing that we'll see is suppose matlab first we'll try to figure out the strictly increasing arrays. First we'll try to figure out the strictly increasing arrays. Same condition, like यहाँ पे जो भी है वही condition रहेगा, those would be ideal arrays. मतलब जैसे मैंने तुम्हें अभी अरेज बताए थे ना 1 1 2, ऐसे अरेज नहीं रहेंगे, इट वुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो लाइक सो समथिंग लाइक 1 2 4. So first we'll try to find the strictly increasing arrays. This is our first problem statement. Second is from step 1 जो भी हमें arrays मिले, from step 1 all the arrays that we have, we'll try to get the final answer. We'll try to get the final answer. Now how this works. तो suppose तुम्हारे यहाँ पर एक यहाँ पे एक array मिला था तुम्हें 1 2 4 का. So this is actually of size n equals to 3, right? And तो मैंने max value देकर रखा था which was 5. And question में बोला था कि the length of the array should actually be 5. So how do you spread this particular array 1 to 4 वाला array so that it actually becomes an array of length 5? So you can write that as 1 1 2 2 4. correct है, right? अभी भी सब सही है. You can also write it as 1 2 2 2 4. There are many ways of converting this particular array जो 3 size का है to an array of actually like of size 5. But how does this work? इसका कुछ formula you'll have to figure out, right? So that is तुम्हें एक्चुअल में फाइनल अरे में कितने स्पेसेस फिल करने, 1 2 3 4 5. ठीक है. सो दिस इज़ जो मैंने बेसिक अरे लिया है 1 2 4 का, दी फर्स्ट अरे ऑब्वियसली. एंड तुम्हें यहाँ पे 3 नंबर्स को स्प्लिट करना है, राइट? तो तुम्हें यहाँ पे बेसिकली अगर 3 नंबर्स को स्प्लिट करना है तो तुम्हें 2 पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ेंगे. समथिंग लाइक इफ़ आई क्रिएट अ एंड यू कैन नॉट कन्वर्ट 1 2 2 इंटू 2 2 2 4 4, ये अलाउड नहीं है. अभी हम n इज इक्वल्स टू 3 दैट इज़ 3 नंबर को ही स्प्रेड करेंगे एंड ऑल 3 नंबर्स का एटलीस्ट 1 अकरेंस रहना चाहिए. सो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 नंबर्स को स्प्लिट करना है तो मुझे यहाँ पे 2 पार्टीशंस बनाने हैं. व्हाट डू आई मीन बाय पार्टीशन? सपोज आई मेक अ पार्टीशन ओवर हियर एंड एक पार्टीशन मैंने बना दिया यहाँ पे. तो ये फर्स्ट एरिया है, यहाँ पे 1 आएगा, सेकेंड एरिया में 2 आएगा, लास्ट एरिया में 4 आएगा, विच गिव्स यू अ पॉसिबल आंसर. तो मैं फाइनल आंसर में n शुड बी 5. ठीक है. दिस इज़ अ पॉसिबल आंसर 1 1 2 2 एंड 4. सिमिलरली अगर ले लो यू कैन मेक अनदर पार्टीशन. लेट्स स्प्रेड इट अगेन 1 2 3 4 5. हाँ. तो सपोज मैंने एक पार्टीशन यहाँ बना दी लाइक एंड दूसरा पार्टीशन यहीं पे बना दिया. सो इट वुड बिकम समथिंग लाइक 1 2 4 4 4. ये भी करेक्ट आंसर है. सो इफ़ यू सी आई कैन स्प्लिट दिस 1 2 4 इंटू मल्टीपल वेज. एंड हाउ डू यू सिलेक्ट दैट? यू नीड 2 पार्टीशंस. तुम्हें कोई 2 लाइक यहाँ पे हम 2 पार्टीशंस करें, राइट? तुम्हें कोई 2 पार्टीशन सेलेक्ट करना है. कितने पार्टीशंस में से? यू हैव अ टोटल ऑफ 1 2 3 4. मतलब लाइक अगर n वैल्यू 5 है सो पॉसिबल पार्टीशंस इज एक्चुअली इक्वल्स टू n-1 इन दिस केस इट इज़ 4. एंड तुम्हें उसमें से कितने पॉसिबल सिलेक्ट करने हैं टू चूज़ तुम्हारा कितना है, हाउ मेनी लाइक पार्टीशन यू हैव टू चूज, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू तुम अभी जिस साइज को स्प्रेड कर रहे हो. तो मैं n इज इक्वल टू 3 को n इज टू 5 में लाइक n इक्वल्स टू 5 में कन्वर्ट कर रहे हो. सो 2 चूज इज इक्वल्स टू अगेन यहाँ वाला n-1 विच इज़ इन दिस केस 2. सो बेसिकली वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिलेक्ट 2 elements
like given a total of 4 partitions, you have to select two partitions, so that is actually simply 4c2. ये तुम्हें करना है, एंड द ओनली टफ पार्ट दैट आई हैव डन इन दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन इज दिस यू कैन एक्चुअली फिगर आउट विद फर्मिट्स थ्योरम. अगर like if you use languages like Java and all, you can use big integer, but it's ideal to learn this also, and like how to find NCR mod p, because question में बोला है तुम्हें 10⁻⁹ करना है using Fermat-Little theorem. Because if you don't do this, you keep on doing the modulo, ऊपर का modulo कर दिया and denominator का modulo कर दिया, and that's not how you divide modulo. Division of modulo doesn't work that way. सो रीड दिस वंस हाउ टू कैलकुलेट एन सी आर, क्योंकि हमें यहाँ पे एन सी आर ही कैलकुलेट करना है. मॉड पी लाइक मॉड एम, जो भी क्वेश्चन में एम दिया है, यूजिंग फर्मिट-लिटल थ्योरम. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था. अभी जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, दिस वी डिड फॉर n इक्वल्स टू 3, राइट. हमने जो भी कैलकुलेट किया n इक्वल्स टू 3 का, एंड ऐसे ही n इक्वल्स टू 3 में ना बहुत होने वाले. लाइक सिमिलरली यू विल डू द सेम थिंग फॉर n इज इक्वल्स टू 4 ऑल्सो. सपोज एक वैलिड अरे उठाते, सपोज तुम्हारा मैक्स वैल्यू जो अलाउड है ना वो होता 8. ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 4 में आता 1 2 4 8, ऐसा कुछ वैल्यू बनता. फिर तुम अगेन इसको अगर तुम स्प्लिट कर सकते हो, सपोज अभी तुम्हें n इज इक्वल टू 6 में स्प्लिट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, एंड 6 से स्प्लिट करना है. यू हैव अ टोटल ऑफ 4 एलिमेंट्स, तो कितने स्प्लिट लगेंगे? 1 2, मैंने रैंडमली यहाँ पे 3 स्प्लिट कर दिया. सो यू कैन पुट 1 ओवर हियर, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 यहाँ पे. सो अगेन सेम सिचुएशन आ गया कि इतने नंबर ऑफ पॉसिबल स्प्लिट्स है, तुम्हें इसमें से 3 स्प्लिट्स को सिलेक्ट करना है. 3c5 kind of something like this, 1 2 3 4 5. So 3c5 would be your answer for this. Similarly you will be doing for all n is equals to 4. अभी the thing is, तुम्हें ये पता होना चाहिए अच्छे से कि कितने एलिमेंट्स है, लाइक हाउ मेनी. तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 का तुमने एक एग्जांपल देखा, ठीक है. वापस n इज इक्वल टू 3 पे वापस आ जाते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने तुम्हें एक अरे दिखाया, बट देयर कैन बी मल्टीपल सच अरेज. 1 2 6 करेक्ट है, एंड इज लाइक मैक्स वैल्यू 8 है. 1 3 6 भी करेक्ट है. देयर इज ऑल्सो 1 2 8 भी करेक्ट है. ये सब है, तो तुम्हें इसका काउंट पता होना चाहिए. सो व्हाट यू एक्चुअली वांट इज कि n इज इक्वल्स टू 3 में कितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरेज है. n इज इक्वल्स टू 3 में टोटल कितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरेज है. फिर अगर तुम्हें एक बार उसका काउंट पता चल गया, तो तुम सबके लिए वो एन सी वाला जो वैल्यू है वो चला सकते हो, क्योंकि तुम्हें अभी सबको, जो तुम्हारा अगर लाइक फाइनल आंसर 5 है, तो तुम्हें n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 5 सबको कन्वर्ट करना है. सो एक फार्मूला सबके लिए लगा सकते हो. सो दिस इज़ हाउ द वर्क्स, लाइक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. नाउ व्हाट यू हैव टू फिगर आउट इज़ कि ये कैसे आएगा कि n इज इक्वल्स टू 3 में टोटल कितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लाइक कितने. ये फर्स्ट पार्ट, हाउ डू यू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. हमने ये देख लिया कि अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, तो सेकेंड पार्ट का लाइक हाउ यू विल फाइंड द फाइनल आंसर, बट हाउ टू फिगर आउट द फर्स्ट पार्ट. सो अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए वी वुड बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड, लाइक ऑब्वियसली नॉट समथिंग कॉल्ड, डीपी यूज़ करेंगे. हाउ डू यू सॉल्व इट विद डीपी. सो डीपी आई कॉमा के, वॉट दिस रीप, लाइक हमेशा जब भी ऐसा डीपी का प्रॉब्लम है ना, तो जस्ट थिंक दिस वे कि वॉट इफ आई हैड द डेटा ऑफ अ शॉर्टर लेंथ. सो वॉट डीपी ऑफ आई के रिप्रेजेंट्स इज लेंथ इज आई, कि अरे का लेंथ इज आई, एंड इस आई पोजिशन में मेरे को के डालना है. के इज़ बेसिकली दी एलिमेंट, लाइक यू वॉन्ट टू पुट द केथ एलिमेंट. ठीक है, तुम्हें केथ एलिमेंट ऐड करना है. नाउ यू वुड से कि हाउ कैन यू टेक आई एज अ पैरामीटर, लाइक लेंथ को पैरामीटर कैसे ले सकते हो. बिकॉज दे हैव सेड इन द प्रॉब्लम कि मैक्स वैल्यू विल मैक्स टू मैक्स गो टिल 10⁻⁴. एंड इफ़ यू सी 2⁻14 या 2⁻15 के अराउंड 10⁻⁴ वाला बैरियर ऑलरेडी एक्सीड हो जाता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे यू कैन यूज़, लाइक ये लेंथ इतना ज़्यादा नहीं आएगा. यहाँ पे एक बार पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेना, हाउ दैट वर्क्स. सो बेसिकली यू कैन स्टोर द लेंथ, बिकॉज हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ढूंढ रहे हैं. तो इफ़ यू सी जैसे 1 2 4 8 16 32, ये सब नॉट, मैंने ज़्यादा ही ले लिया 16, देन ठीक है 32 64 28 128 256 512, ऐसे करते करते सब देखो हम 2 के पावर्स में बढ़ते जा रहे हैं. बिकॉज और ये मैं सबसे बेसिक वाला वो बना रहा हूँ, सबसे बेसिक वाला आइडियल स्ट्रिक्टली जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरे है. एंड दिस इज़ गोइंग एंड 2 पार्ट्स के में जा रहा है, एंड 2⁻14 15 तक वो मैक्स वैल्यू वाला जो तुम्हारा लिमिट है ना वो एक्सीड हो जाएगा. दैट्स वाई यू कैन कीप द लेंथ एज 14.
ठीक है, तो ये लग दिया। अभी हाउ विल यू फाइंड, सपोज तुम्हें ये ढूंढना है कि डीपी ऑफ, ठीक है ये मैं समझाता हूँ हाउ दिस डीपी वर्क्स। लाइक तो लाइक हाउ यू विल गेट द डेटा फॉर द प्रीवियस जो भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो अभी अगर ले लो तुम्हारा n इक्वल्स टू 6 है, सॉरी मैक्स वैल्यू 6 है, मैक्स वैल्यू 6 है। तो अभी ना हमने सपोज ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है डी पी ऑफ टू, लाइक कैसे समझोगे, डी पी ऑफ टू का हमने चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी, लाइक हमने टू साइजेस की चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी। सो इट इज़ समथिंग लाइक 1 2 आया होगा, 1 3 आया होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 6 3 6, दैट्स इट, 2 4 और कुछ नहीं आएगा, राइट। 2 6 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 3 6 हो गया, 4 8 नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, इतना तो हमारे पास आ गया। ये सब टू साइज़ वाले अरे थे जिनका मैक्सिमम वैल्यू 6 एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और वो डिविजिबल भी है। अभी तुम्हारे पास एक, तुम्हें सॉल्व करना है डीपी ऑफ लेंथ ऑफ द अरे इज 3 एंड तुम्हें अभी जो एलिमेंट ऐड करना है ना दैट इज़, लेट्स जस्ट से तुम्हें जो भी एलिमेंट ऐड करना है दैट इज, इसे हटा देते हैं 12, मैक्स वैल्यू 12 है, तुम्हें 12 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम और छोटी चीज़ें ऐड कर देना। हाउ डू यू सॉल्व दिस, डी पी ऑफ 312 क्या होगा, डी पी ऑफ 312 वुड बी, ये बोलेगा ठीक है नाउ गिव मी दी वैल्यूज़ ऑफ कितने दो साइज़ के अरे थे जिनका लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक, दीज शुड बी डी पी ऑफ टू, लाइक डी पी ऑफ, ठीक है। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू सॉल्व डी पी ऑफ 3 12, मतलब how many arrays are possible of length 3 such that the last element is ending with 12. This is only possible if you give, like if you give me कितने elements, like कितने arrays थे of length 2 but their last element should be a factor of 12, means यहाँ पे you can either have a 1, you can have a 2, you can have a 3, you can have a 4, you can have a 6. यही है फैक्टर्स विच आर नॉट, लाइक विच आर स्ट्रिक्टली लेस देन 12 जो इस पोजीशन में अलाउड है। मेरे पास वो डेटा ऑलरेडी है, आई ऑलरेडी हैव, मैं जब डी पी ऑफ 3 पे आया मैं डी पी ऑफ 2, बेसिकली हाउ यू सॉल्व डी पी इज़ यू वांट जस्ट अज्यूम कि मेरे को ये वाला डेटा सॉल्व करना है, डू आई हैव द डेटा ऑफ द प्रीवियस स्टेट, येस यू हैव ये वाला डेटा, डी पी ऑफ 2 1 you already have, dp of 2 of 3 you already have, similarly for 4 and 6. what this means is तुम्हारे पास ये डेटा है, when I say that actually means is तुमको ये पता है कि कितने अरेज है of length 2 which are ending with 3, उनके आगे 12 लग सकता है, राइट, बिकॉज इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, क्योंकि मैं ये जो लूप चलाऊंगा ना यहाँ पे मैं 12 के फैक्टर्स पे ही चलाऊंगा, फिर तो मुझे इजीली वही नंबर्स मिलेंगे विच आर ऑफ लेंथ 2, arrays of length 2 and they are ending with the factors of 12. That's all I want. उसको मैं सिंपली इसके आंसर में प्लस इक्वल्स टू कर दूंगा। एंड व्हेन यू हैव ऑल दिस, सपोज तुम्हारे पास डी पी ऑफ 3 ऑफ 1 से लेके डी पी ऑफ 3 ऑफ मैक्स वैल्यू तक आंसर आ गया। नाउ इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड ऑल दिस, बेसिकली इफ़ यू सम ऑल दिस यू विल एक्चुअली गेट कि कितने एलिमेंट्स है ऑफ लेंथ डी पी 3 विच आर एंडिंग, लाइक बेसिकली इफ़ यू जस्ट ऐड ऑल ऑफ दिस तो मैं ये मिल जाएगा कि कितने अरेज है ऑफ लेंथ 3, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरेज ऑफ लेंथ 3 विच आर लाइक विच फॉलो दैट डिविजिबिलिटी वाला पैटर्न। वंस यू हैव दैट, स्टेप 2 का आंसर तुम्हें निकालना आता है। ऑल यू डू इज, सपोज डी पी 3 है तो तुम्हें पता चल गया हाउ मेनी अरेज आर देयर ऑफ लेंथ 3, you have to convert them into length 5. what do you do, 4c2 and multiply them with dp3. तो 4c2 तो कॉमन फार्मूला हो गया, ऐसे कितने अरेज पे ये फार्मूला लगाना है, dp ऑफ 3 जो तुमने अभी भी कैलकुलेट किया। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट NCR mod m, यू वुड यूज़ योर फर्मर-सिटल थ्योरम, जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा बट आई विल शेयर दिस आर्टिकल, रीड दैट वंस। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बिट वाइज पार्ट वाइज समझना। सो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यू एक्चुअली फाइंड दी फैक्टर्स, क्योंकि ये वाला पार्ट जो था जहाँ तुम डी पी ऑफ 3 12 जो तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है एक मिनट बहुत ज़्यादा ही हो गया थोड़ा यहाँ पे, जब तुम्हें डी पी ऑफ 3 12 कैलकुलेट करना है, व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट डी पी ऑफ 3 12, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट दिस डी पी ऑफ 3 12 मीन्स। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन अरे ऑफ लेंथ 3 जिसका लास्ट एलिमेंट इज 12। सो व्हाट आई वांट इज हाउ मेनी अरेज आर देयर ऑफ लेंथ 2 विच एंड विथ ईदर अ 1 और 2 और दे एंड विथ 4, 3 is also valid, 6 is also valid, और ये डी पी ऑफ 2 तो सब में आएगा। सिमिलरली डी पी भी ब्ला ब्ला, तुम इसका सबका वैल्यू लेकर आओगे क्योंकि इन्हीं के आगे यू कैन पुट अ 12।
दैट्स व्हाट आई लाइक, वही मैंने किया है। डी पी एज यू सी 15 तक मैंने बनाया मैक्स वैल्यू, मतलब 14 तक जाएगा मैक्स वैल्यू प्लस वन। डी पी ऑफ वन लाइक डी पी ऑफ वन कॉमा आई इज़ ऑलवेज लाइक ऑलवेज वन, क्योंकि एक साइज़ का तो एक एलिमेंट लाइक एक एलिमेंट बनेगा मैक्स टू मैक्स, एक अरे बनेगा। बट देन इफ़ यू सी दिस, मैं उसके फैक्टर्स में जा रहा हूँ, वट एवर वैल्यू आई हैव एंड वॉट दिस जे एंड आई रिप्रेजेंट्स, कि मेरे को अपना लेंथ जे रखना है और अपना लास्ट वैल्यू आई रखना है। देन डी पी ऑफ जे कॉमा आई इज़, उसके फैक्टर्स में ट्रेट करूंगा एंड जे माइनस वन में मैं देखूंगा कि कितने एलिमेंट्स ऑफ लेंथ जे माइनस वन विच आर एंडिंग विद दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तुम्हारे डी पी ऑफ जे लाइक जे कॉमा आई कैलकुलेट हो गया। नाउ उसका समेशन हो जाएगा, जो भी डी पी ऑफ जे थे ना सबके, लाइक डी पी ऑफ जे, वॉट डी पी ऑफ जे रिप्रेजेंट्स, मुझे अभी जब मैंने सब चीज़ कैलकुलेट कर ली ना, मुझे चाहिए कि हाउ मैनी अरेज आर देयर विच आर ऑफ लेंथ थ्री। सो वही जो मैंने बोला, डी पी ऑफ थ्री कॉमा वन से लेके मैक्स वैल्यू मैं सब ऐड कर दूंगा। सो इफ़ यू सी मैंने यहाँ रखा है टोटल के साइज अरेज, एंड अब तक इफ़ यू नो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरेज। ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये तुम्हें लाइक ये वाला डेटा मिल गया, अभी इन सब में एन सी वाला लॉजिक, व्हाट डू यू मीन बाय एन सी वाला लॉजिक। ठीक है, सपोज मैं अभी लाइक आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट, मैं लास्ट बार एक बता देता हूँ, आई डोंट थिंक सो वो तुम्हें समझा। सपोज आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट लेंथ थ्री to length 5 because like n is equals to 5 is my ultimate goal. I want all my arrays to be of length 5 and currently I'm focusing on like n equals to 3. So how do I get कि कितने elements of size 3, वो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया अभी अभी, और फिर मैंने उसका समेशन करके भी अपने आंसर में सेव कर दिया। बट व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कन्वर्ट n इज इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 5, दैट इज़ 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तुम्हें यहाँ पे कितने एलिमेंट्स प्लेस करने, 3, सो यू विल मेक 2 स्प्लिट्स, सो 1 2, like what are the ways of selecting these two splits from all the possible 1 2 3 4 splits, it's 4c2 right। so ये फॉर्मूला लगेगा इफ़ यू सी, भाई देखा ना n3 था 5 में कन्वर्ट करना था, तो -1 5 -1 c3 -1, उसका एनसीआर निकाला, एंड ये वाला फॉर्मूला कितने एलिमेंट्स में लगेगा, जो टोटल था तुम्हारा 3 का, कि कितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरेज ऑफ लेंथ 3 इनटू टोटल साइज अरेज ऑफ J3, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसमें जो पार्ट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग राइट नाउ इज NCR, ब्लैक बॉक्स करना फॉर दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल, रीड दिस, फिर तुम्हें समझ जाएगा उसमें क्या कंप्यूट हुआ है। तो बेसिकली ये फैक्टोरियल मैंने कन्वर्ट लाइक कंप्यूट किया था, प्री कंप्यूट, एंड देन ये मैंने बेसिक लिखा है फॉर्मेट का, कि ये भी मेरे नोट्स में से उठाया मैंने, व्हाट फॉर्मेट एक्चुअली डज। सो एक बार पढ़ लेना हाउ फॉर्मेट वर्क, उसके लिए ये सब लगता है मॉड्यूलो ऑपरेशन, दैट्स, हाँ बस ये पार्ट पढ़ लेना, ये दोनों, हाउ फॉर्मेट एक्चुअली वर्क्स, हाउ दिस मॉड्यूलो एक्चुअली वर्क्स, एंड दैट शुड बी इट। सो स्टेप बाय स्टेप जाना कि हाउ डू यू कैलकुलेट दिस फर्स्ट स्टेप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरेज ऑफ लाइक विच आर ऑल्सो आइडियल, strictly increasing arrays which are also ideal, and how do you like when you get that answer, how do you convert that to your final answer जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल। कुछ डाउट हो कोई भी स्टेप में तो पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल, बाय बाय।